آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ٹاؤن ہال سے مکئی گیٹ تک 24 میٹر DP روڈ میں حائل رکاوٹوں پر چلے آج میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزرز۔ ابتدا میں کارروائی کی ہوئی مخالفت، مگر ایڈیشنل میونسپل کمشنر کی مداخلت کے بعد انکروچرز نے کیا میونسپل عملے سے تعاون۔ گائران زمینات قبضے داروں کے نام کرنے اور مسلمانوں کو 5% ریزرویشن و دیگر مطالبات پر BRSP نے نکالا کامیاب مہا مورچہ۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام علاقائی انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ آزاد NGO، سماجوادی پارٹی اور دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں نے کی پرزور حمایت۔ دیگر علاقوں ہی کی طرح اندرا نگر باجی پورہ علاقے میں بھی گزشتہ کئی ماہ سے نلوں کے ذریعے سپلائی ہو رہا ہے آلودہ پانی۔ ساکنان وبائی امراض کی زد پر، مگر انتظامیہ کی بے حسی برقرار، فوری توجہ کا مطالبہ۔ اور میونسپل طلبہ کی اسکالرشپ فیس ادا کرنے کے بعد میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کی جانب سے بچوں کو کروائی جا رہی ہے امتحانات کی تیاری۔ اصل امتحان کی طرز پر آج لیے گئے 5ویں اور 8ویں جماعت کے طلبہ کے ٹیسٹ۔ خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے آج کارروائی کرتے ہوئے ٹاؤن ہال سے مکئی گیٹ 24 میٹر DP روڈ میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 10 سال قبل AMC انتظامیہ نے ٹاؤن ہال سے مکئی گیٹ 24 میٹر DP روڈ کے لیے ایکویزیشن کی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ اس روڈ پر بیشتر شہریان نے پکے مکانات اور دکانیں تعمیر کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس سڑک کا تعمیری کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہیں انتظامیہ نے کئی مرتبہ اپنے انکروچمنٹس خود ہی نکالنے کے لیے ہدایت کی تھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے رکاوٹیں دور نہیں کی، لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر چودھری کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر روندر نکم کی رہنمائی میں غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ آج ٹاؤن ہال جے بھیم نگر پہنچا اور DP روڈ میں حائل ناجائز قبضہ جات ہٹانا شروع کر دیے، مگر متعلقہ مکان مالکان نے یہ کہہ کر کارروائی کی مخالفت کی کہ مارکنگ سڑک کی دونوں جانب کی گئی ہے، تو پھر ایک ہی سائٹ کے مکانات منہدم کیوں کیے جا رہے ہیں، جس پر ایڈیشنل کمشنر نے انہیں تیقن دیا کہ کارروائی دونوں ہی جانب کی جائے گی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جس کے بعد وہاں انہدامی کارروائی شروع کر دی گئی۔ یہ کارروائی ایڈمنسٹریٹو آفیسر وسنت بوئے، بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، روندر دیسائی، ٹاؤن پلاننگ شعبے کے SR بھانگے، پولیس انسپکٹر فہیم ہاشمی، پولیس ملازم امین الدین شیخ، بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے افسران و ملازمین، اسی طرح اتیکرمن ہٹاؤ دستے کے ملازم سید افضل، اکشے مگرے، وکی بنکر، سدھارتھ ڈھگے اور دیگر نے انجام دی ہے۔ گائران زمینیں قبضے داروں کے نام کرنے کے علاوہ مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیے جانے کے مطالبے پر آج BRSP اور آزاد NGO کے اشتراک سے شہر میں ایک مہا مورچہ نکالا گیا اور ایک مطالباتی میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام علاقائی انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ یہ مورچہ شہر کے بھڑکل گیٹ پر واقع ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کے پاس سے ڈویژنل کمشنر کے دفتر تک لے جایا گیا۔ مورچے میں سینکڑوں گائران قبضہ دار اور مسلمان شامل ہوئے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر کو پیش کردہ میمورنڈم میں وضاحت کی گئی کہ مہاراشٹر میں مسلم برادری تعلیمی اور معاشی میدان میں پسماندگی کی شکار ہے، اس لیے مسلم طبقات کو سماج کے معاشی و تعلیمی دھارے میں شامل کرنے کے لیے انہیں 5% تعلیمی ریزرویشن دیا جائے۔ اسی طرح مسلم اقلیتی طلباء کو دی جانے والی پری میٹرک اسکالرشپ جاری رکھی جائے۔ اسی طرح اس مورچے کا دوسرا وہ اہم مطالبہ جو اس میمورنڈم میں شامل تھا وہ یہ ہے کہ ریاست بھر گائران زمینات پر قابض بے زمین اور گائران ناجائز قبضے داروں کے قبضوں کو جن پر وہ برس ہا برس سے رہتے ہیں یا کھیتی کرتے آئے ہیں، انہیں مذکورہ تحویلات کی باضابطہ مالکانہ 7/12 عطا کیے جائیں۔ اس مورچے میں شامل مظاہرین اپنے مطالبات کو لے کر زوردار نعرے بازی بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ آزاد NGO اورنگ آباد کی اور سے ہم لوگوں نے ان کو پوری طریقے سے خاتمہ دیا ہے۔ ہماری مانگ یہ ہے کہ 5% آرکشن جو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے تو وہ آرڈر کے اعتبار سے اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ انیک سرکار آئی اور گئی، لیکن ایمان والوں کو، مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کے لیے استعمال کرتے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ہماری یہ مانگ ہے کہ ایک 5-6 مہینے کے اندر اگر سے یہ سرکار نے ہم کو 6 مہینے کا الٹیمیشن دے رہے ہیں کہ اگر نے وہ ہائی کورٹ کا امپلیمنٹیشن اگر سے نہیں کیا تو پورے
औरंगाबाद जिले ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज से करेंगे। हर मुस्लिम संगठनों को, हर पार्टी वालों को इसके साथ में इन्वॉल्व करके एक बहुत बड़ा महामोर्चा रखेंगे और उसके लिए हम हर तरीके से रास्ते पे उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी हमारे साथ में 18 से 19 संगठन है अभी औरंगाबाद लेवल पर। सुरेश पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरामध्ये महामोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। या मोर्चामध्ये ज्या राज्य सरकारने शेतकरी, शेतमजूर, गायरान अतिक्रमण धारकांच्या विरोधात त्यांचं अतिक्रमण काढण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय रद्द करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम गायरान धारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। त्याचबरोबर या महाराष्ट्रामध्ये मुंबई हायकोर्टाने मुस्लिमांना 5% शैक्षणिक आरक्षण दिलेलं आहे। ते आरक्षण लागू करण्यासाठी, त्याचबरोबर आपल्या मराठवाड्याचा आर्थिक विकास जो थांबलेला आहे तो आर्थिक विकास करण्यासाठी येणाऱ्या बजेटमध्ये त्या ठिकाणी तरतूद करण्यासाठी या हजारोच्या लाखोच्या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। या मोर्चाच्या माध्यमातून या राज्यातल्या शिंदे फडणवीस सरकारला आम्ही सांगतोय की या देशातला अतिक्रमणधारक, या देशातला शेतकरी, शेतमजूर हा देखील माणूस आहे। तुम्ही यांना त्यांच्या जमिनीवर हाकलून उद्ध्वस्त करण्याचं षडयंत्र करताय। तुम्ही जर या शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केलं, येणाऱ्या काळामध्ये हेच शेतकरी, हेच शेतमजूर, हेच अतिक्रमणधारक तुम्हाला उद्ध्वस्त करतील, तुम्हाला सत्तेतून पाय उतार करतील। म्हणून या ठिकाणी महाराष्ट्रातली एक गुंठाच नाही तर आमच्या अतिक्रमण धारकाची 1 इंचही जमीन आम्ही तुम्हाला देणार नाही। ही जमीन शिंदे फडणवीसच्या बापाची नाही, ही जमीन नरेंद्र मोदीच्या बापाची नाही, ही जमीन माझ्या शेतकरी बांधवाच्या बापाची आहे। म्हणून ही जमीन आम्ही कदापि सोडायला तयार नाही। आमचा जीव गेला तरी 72, परंतु या जमिनी सोडणार नाही। या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे, आम्हाला घर मिळायला पाहिजे। आम्ही गायरन आहे, आम्हाला पाणी मिळायला पाहिजे, आम्हाला घर मिळायला पाहिजे, आमच्या लेकरांचं शिक्षण व्हावं, हे आमची इच्छा है। इंदिरानगर बायजीपुरा इलाके में भी गुज़िश्ता कई महीनों से नलों के जरिए आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। मुतासरा साकिनान के मुताबिक बेशतर इलाके में नलों के जरिए काले रंग का बदबूदार पानी आ रहा है। इस ताल्लुक से कई मरतबा मुताल्लिक़ा दफ्तर से शिकायत की गई, इसके बावजूद म्यूनसिपल अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। इस पानी के इस्तेमाल से इलाके के साकिनान डायरिया, वोमिटिंग और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन लोगों का मुतालबा है कि ये मसला फौरी हल करवाया जाए और उन्हें साफ व शफाफ और जरासीम से पाक पानी फराहम किया जाए। नाजरीन, ऐसी ही सूरत हाल रेलवे स्टेशन मस्जिद से मुत्तसिल गली की भी है, जहाँ ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है, मगर बार बार शिकायत के बावजूद भी मुख्तलिफ बहाने बनाकर म्यूनसिपल अमला अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। इस ताल्लुक से गुज़िश्ता इतवार को हमने MCN पर खबर दिखाई थी, इसके बावजूद भी अभी तक यहाँ का चुकअप नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। अपनी सालगिरह के मौके पर समाजी खिदमत को अव्वलियत देते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के नायब रियासती सदर राजेंद्र सांवड़े ने घाटी अस्पताल को 6 लाख रुपयों की दवाइयों का तोहफा पेश किया। भाजपा के युवा मोर्चा नायब सदर ने सालगिरह की तकारीब पर गैर जरूरी अखराजात और इसराफ से बचते हुए एक नई तमसील और बेहतर पैगाम पेश किया है। उन्होंने समाजी खिदमत और जरूरतमंद और गरीब मरीजों की मदद को अव्वलियत देते हुए घाटी अस्पताल इंतजामिया को 6 लाख रुपये मालियत की दवाइयों का तोहफा दिया है। इस मौके पर घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय राठौड़, इसी तरह भाजपा के जिला सदर शिरेश बोरालकर, राजेंद्र साबले, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कल्याणकर, डॉक्टर सरोजनी जाधव, डॉक्टर गायत्री तलवड़कर, कुणाल गिल, गुरमीत गिल और दीगर भाजपा युवा मोर्चा के ओहदेदारान और कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। और उनकी सही मायने में मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जो ये नया विचार कि अपने जन्मदिन के ऊपर कोई फ्रूट्स देते हैं, कोई शाल बांटता है, कोई खिचड़ी देता है रुग्णों के लिए, वो न करते हुए इन्होंने हमारे रुग्णों के लिए ये जो औषध दिया है ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा गिफ्ट बर्थडे पे कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये लाखों लोगों को काम आने वाला है। ये उनका दर्द कम करेगा, उनके सेहत के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया है। इस कल्पना का भी मैं बहुत अच्छे तहे दिल से उनका पुरस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ और उन्हें फिर
जन्मदिन की बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। म्यूनिसिपल तलबा की स्कॉलरशिप अदा करने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से उन्हें स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारियां करवाई जा रही हैं, जिसके लिए आज असल इम्तिहान की तर्ज पर उनका टेस्ट एग्ज़ाम लिया गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा भी स्कॉलरशिप इम्तिहानात में शिरकत कर सकते। इस गर्ज से म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर 5वीं जमात के 661 और 8वीं जमात के 601 इस तरह जुमला 1262 तलबा की इम्तिहान की फीस म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिस की जानिब से अदा कर दी गई। म्यूनसिपल तलबा इस इम्तिहान की तैयारी के लिए खानगी कोचिंग क्लासेस का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए म्यूनसिपल असातिज़ा उन्हें इन इम्तिहानात की तैयारी करवा रहे हैं और DMC नंदा गायकवाड़ की हिदायत पर उनके म्यूनसिपल सतह पर इम्तिहानात भी लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें स्कॉलरशिप एग्जाम में किस तरह से सवालिया पर्चे हल किए जाने चाहिए इसकी प्रैक्टिस हो सके, जिसके तहत आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी 52 मदारिस में पहला इम्तिहान लिया गया, जिसके लिए मेंटोर के जरिए स्कॉलरशिप इम्तिहान की तर्ज पर सवालिया पर्चे तैयार किए गए और जिस तरह से असल इम्तिहान में OMR शीट से बने जवाबी पर्चे दिए जाते हैं, इसी तरह के जवाबी पर्चे आज तलबा को दिए गए। इस टेस्ट इम्तिहान को कामयाब बनाने में सभी सेंटर चीफ असुदय फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज मुनक़िदा इम्तिहान के दौरान सर्व शिक्षा एक्सटेंशन ऑफिसर, समग्र शिक्षा के सब्जेक्ट एक्सपर्ट, असातिज़ा और मेंटर्स ने स्कूल्स को विजिट की। बिड़किन से करीब मज़ाफ़ात में तेंदुए की मौजूदगी से साकिनान में खौफ व दहशत का माहौल है। किसानों का कहना है कि तेंदुआ मादा 2 बच्चों के साथ देखी गई है। गुज़िश्ता दिन 30 जनवरी की रात बिड़किन के करीबी मज़ाफ़ात इस्लामपुरा और गिधाड़ा के इलाकों में इस तेंदुआ मादा और उसके 2 बच्चों को देखा गया, जिसके बाद से इलाके के साकिनान खौफज़दा हैं और रात देर गए ये इत्तला महकमा जंगलात के अफसरान को भी दे दी गई। बाद अज़ां 31 जनवरी की सुबह जंगलात के स्क्वाड ने मौके का जायजा लिया और जंगल में पाए गए तेंदुए के पाँव के निशानात की जाँच की, ताहम उनकी जानिब से हनूज़ कोई वजाहत सामने नहीं आई थी कि ये निशान तेंदुए ही के हैं। आया रहे कि पिछले दिनों रांजनगांव खोरी के इलाके में तेंदुए को कई लोगों ने देखने के बाद बहुत सारे किसान वहां से भाग निकले थे। इस तरह की खबरें भी मिली हैं और किसानों का दावा है कि तेंदुआ अपने बच्चों के साथ यहां मौजूद है, ताहम इस दावे की तस्दीक नहीं हो पाई है। खेत बस्तियों पर रहने वाले किसानों और उनके खानदानों में खौफ व दहशत को देखते हुए जंगलाती अहलकारों ने इस सारे इलाके को छान मारा और कुछ पाए गए पाँव के निशानात के नमूने भी उन्होंने जमा किए हैं, जबकि किसानों और साकिनान का मुतालबा है कि तेंदुए को जल्द अज जल्द उसके बच्चों समेत जंगलात वाले तहवील में लें और उन्हें खौफ के साये से बाहर निकालें। 1 फरवरी से स्मार्ट सिटी बस महकमे की जानिब से ख़वातीन के लिए खुसूसी बस सर्विस शुरू की जा रही है, जिसके लिए एक इफ्तिताही तकरीब सुबह 9 बजे मुकुंदवाड़ी डिपो में रखी गई है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 1 फरवरी से ख़वातीन के लिए औरंगपुरा से चिकलथाना रूट पर खुसूसी बस शुरू की जा रही है, जिसका इफ्तिताह सुबह 9 बजे मुकुंदवाड़ी में मौजूद स्मार्ट सिटी बस डिपो में किया जाएगा। मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए शहरी हुदूद में खुसूसी बस सर्विस शुरू की जा रही है। मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक ख़वातीन के लिए मज़कूरा रूट पर खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। ये गाड़ी रोजाना औरंगपुरा तक चिकलथाना, इसी तरह चिकलथाना तो औरंगपुरा 5-5 फेरियां करेंगी। अहम बात तो यह है कि फरवरी के महीने में ही G20 के तहत वीमेंस 20 कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शहर में मुनक़िद होने जा रही है और इसी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है। सिटी बसेसमुळे आम्हाला खूप फायदा झाला। महिलांसाठी रिझर्व सीट असतात, रिक्षामध्ये परवडत नाही आणि तसेच बसमध्ये पासेस पण असतात, त्यामुळे पैशांची बचत होते। साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने मुताल्लिक़ा शोबे से मुतालबा किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दरख्वास्त दही की मुद्दत में 28 फरवरी तक का इजाफा किया जाए। आया रहे कि वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत घरकुल हासिल करने के लिए दरख्वास्त दही की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी,
जो आज खत्म हो जाएगी। ताहम इस दरखास्त दही के लिए मियाद को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए, इस तरह का मुतालबा घोड़ेले ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया और इस बाबत उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को बाज़ाब्ता एक लेटर भी दिया है जिसमें वजाहत की गई है कि इस स्कीम के तहत अज़ीं क़ब्ल 52,000 दरखास्तें दी जा चुकी थीं, लेकिन इस मुतालिक मुस्तफ़ीदीन के अहम कागजात वो डेटा कारपोरेशन के मुताल्लिक़ा दफ्तर से गुम हो जाने के सबब मज़कूरा इंतजामिया ने दोबारा दरखास्त दही करवाई है और 19 दिसंबर से 20 जनवरी तक दोबारा ऑनलाइन व बराह रास्त दरखास्तें जमा की गईं और ये दरखास्तें सिर्फ 18,000 की तादाद ही में हासिल हो सकी थीं। घुड़ेले की दरखास्त को मंजूर करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने 31 जनवरी तक दरखास्त दही की मियाद बढ़ा दी थी, जिसके सबब 31 जनवरी तक 35,000 दरखास्तें जमा करवाई गईं और इस पहली इजाफी मियाद को बेहतर ताउन मिला। ताहम अभी भी दरखास्त दहिंदा अफराद बाकी हैं और वो भी इस स्कीम से महरूम न रह जाएं, इसलिए नंद कुमार घुड़ेले ने फिर से डॉक्टर चौधरी से 28 फरवरी तक मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज चंद्रकांत खैरे के बेटे के ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले में अब एक नया मोड़ आया है। वाज़ेह रहे कि सरकारी मुलाजिम के तबादले के लिए रकम के लेने देने की बात वायरल हुई थी। इस ऑडियो में खैरे पुत्र ऋषिकेश खैरे ने महकमा जंगलात के मुलाजिम का तबादला करवाने के लिए 2 लाख रुपया लेने की बात कही गई थी। ताहम अब इस रिकॉर्डिंग में 2 लाख रुपये वापस मांगने वाले ताक मोघे नामी शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि मेरा और विशाल नामी मेरे दोस्त का रकमी लेन देन था जो इस ऑडियो कॉल में वायरल हुआ है और विशाल ने मुझे मेरे पैसे वापस भी कर दिए हैं। मोघे ने अपने वीडियो में वजाहत कर दी है कि तबादले के लिए पैसे लेने के तनाज़े में ऋषिकेश खैरे का कोई किरदार नहीं है और उस ऑडियो का गलत इस्तेमाल किए जाने की कोशिश हुई है। ये खुलासा भी इस नए वीडियो में कर दिया गया है। मी विजय ताकमोगे आज सकाळी प्रसार माध्यमातून माझी व ऋषिकेश खैरे यांची ऑडिओ संदर्भात बातमी पाहिली। त्याबद्दल मला अतिशय महत्त्वाचा खुलासा करायचा आहे। मी सध्या पालघरमध्ये आहे, त्यामुळे व्हिडिओ क्लिपद्वारे खुलासा करू इच्छितो। झालेल्या कामाच्या व्यवहारासंदर्भात 2 लाखाचा व्यवहार झाला होता। ते पैसे माझा मित्र विशाल याला दिले असून ऋषिकेश खैरे यांचा त्या व्यवहारासोबत कुठलाही संबंध नाही। रागाच्या भरात 2 लाख रुपये माझा मित्र विशाल कधी देणार हे विचारले असता त्या ऑडिओ क्लिपचा उपयोग झाला, त्यामुळे मी दिलगिरी व्यक्त करतो। संबंधित व्यवहारासोबत ऋषिकेश खैरे यांचा कुठलाही संबंध नाही। मला माझे पैसे विशालकडून मिळाले। अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए मनसे के कारकुनान ने परभनी लेबर ऑफिसर को मसनवी तौर पर रोते बिलखते हुए मेमोरेंडम पेश किया। बताया जाता है कि पिछले 1 साल के अरसे से बोगस लेबर कार्ड पर रोक लगाने के लिए बार बार लेबर ऑफिसर को मेमोरेंडम और मकतूब पेश किए गए और नुमाइंदगी की गई, लेकिन मज़कूरा अफसरान महज अपनी मर्जी के दलालों के लिए शायद किसी कार्रवाई से बचते आए हैं। बार बार की याद दहानी और दरखास्त दही भी जब काम न आई तो मनसे कारकुनान और अहदेदारान ने इजहार बेजारगी और अपने दर्द का इजहार करने के लिए एक नए तरीक़े एहतजाज यानी मसनूई तर्ज पर रोने बिलखने की आवाज़ें निकालते हुए लेबर ऑफिसर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के साबिक जिला संगठक श्रीनिवास लाहोटी, मनसे विद्यार्थी विंग के जिला सदर अर्जुन टाक, शहर सदर अंकुश शेटे, शहर नायब सदर श्रीकांत पाटिल, सूर्यकांत मोगल और दीगर कारकुनान मौजूद थे। आम्हाला कुठलंही निरासन झालेलं नाहीये, म्हणून आम्ही आज ह्यांच्या समोर आता रडून अजून एक निवेदन यांना देणार आहे। चला चालू करा रडणं। अपने अनजानी वालिद की बरसी को यादगार बनाने के लिए एक डॉक्टर के ख़ानदान ने नई मिसाल कायम की और समाज को प्लास्टिक मुक्ति का अमली पैगाम दिया। पालम जिला परवनी के डॉक्टर्स एसोसिएशन के ताल्लुका सदर डॉक्टर रघुराज गाडगिल ने अपने वालिद उद्धवराव गाडगिल के यौम वफात पर एक अनोखी मिसाल से समाज को रोशनास करवाया है। आया रहे कि इन दिनों मुतवफ़ियों की बरसी या मुख्तलिफ समाजी तकारीब में खाने के लिए प्लास्टिक की पत्तरवालियों, पानी के बर्तन
और यूज एंड थ्रो के प्लास्टिक ग्लासों के बेदरिग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि माहौलियात और फजाई आलूदगी का सबब तो बनते ही हैं, दूसरी जानिब मवेशियों की सेहत के लिए ये इंतहाई खतरनाक व मुज़िर साबित होते हैं। इन खराबियों और नुकसानात से समाज का हर एक शख्स वाकिफ भी है और इन खराबियों के तज़किरे भी आम हैं, लेकिन इनके तदारुक और इस पर काबू करने के ख्याल बहुत ही कम लोगों के जहन में आते हैं। डॉक्टर रघुराज ने और इनके खानदान ने अपने वालिद की बरसी के मौके पर रिवायती तर्ज के केली के पत्ते से बनी पतरवालियों और बर्तनों, इसी तरह कागज के गिलासों का इस्तेमाल किया और 1000 अफराद के खाने का इंतजाम करके उन लोगों के सामने तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मिसाल भी पेश की है। उनके इस इक़दाम की सभी ने सताइश की है। इस मौके पर प्रवचनकार आचार्य बाबुल गांवकर शास्त्री के प्रवचन का भी एहतमाम किया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाउन हॉल से मकई गेट तक 24 मीटर डीपी रोड में हायल रुकावटों पर चले आज म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर्स। इब्तिदा में कार्रवाई की हुई मुखालिफत, मगर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की मुदाखलत के बाद इंक्रोचर्स ने किया म्युनिसिपल अमले से ताउन। कायरान जमीनात कब्जेदारों के नाम करने और मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन व दीगर मुतालिबात पर BRSP ने निकाला कामयाब महामोर्चा। रियासती वजीर आला के नाम इलाका इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। आज़ाद NGO, समाजवादी पार्टी और दीगर सियासी व समाजी तंजीमों ने की पुरजोर हिमायत। दीगर इलाकों ही की तरह इंदिरानगर बाजीपुरा इलाके में भी गुज़िश्ता कई माह से नलों के जरिए सप्लाई हो रहा है आलूदा पानी। साकिनान वबाई अमराज की जद पर, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, फौरी तवज्जो का मुतालबा। और म्युनिसिपल तलबा की स्कॉलरशिप फीस अदा करने के बाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से बच्चों को करवाई जा रही है इम्तिहानात की तैयारी। असल इम्तिहान की तर्ज पर आज लिए गए 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के टेस्ट। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।